Hello, a very good morning to all of you students. So today we are going to see our next chapter, which is the electoral politics. Basically, we are going to see in this chapter how we are getting our elections. Okay, it means like how one vote carries a decision, which is very important. So let's see what we have here in this. Why elections? The newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. The state had been ruled by a Congress party led a government since 1982, Chaudhry Devi Lal. Then an opposition leader led a movement called Navya Yudh and formed a new party, Lok Dal. His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections. In the election campaign, Devi Lal said that if his party won the election, his government would waive a loan of the farmer and the small businessman. He promised that this would be the first action of his government. The people were unhappy with the extinction government. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आई है जो कि हरियाणा असेंबली के बारे में बताती है कि स्टेट में कांग्रेस पार्टी जो थी वो लीड करी थी 1982 टाइम पे। उस टाइम पे जो चौधरी देवी लाल थे वो एक अपोजिशन लीडर थे जिन्होंने नव्या युद्ध का बेसिकली स्ट्रगल किया था और एक न्यू पार्टी फॉर्म की थी जिसका नाम था लोक दल। इसकी अपोजिशन पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था इसके अगेंस्ट कांग्रेस के इलेक्शन के लिए। और इस इलेक्शन कैंपेन में देवी लाल ने कहा था अगर उनकी पार्टी जीतती है तो गवर्नमेंट की जो भी लोन्स है फार्मर्स पे यानी जो किसान्स पे और स्मॉल बिजनेसमैन पे, ये सारी चीज़ों को फर्स्ट एक्शन पे गवर्नमेंट की पहले मतलब उनको हटाया जाएगा। क्योंकि पीपल्स जो थे ये क्या थे, अनहैप्पी थे किससे, जो उनकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने क्या किया, ये देवीलाल का जो ऑफर जो प्रॉमिस था इससे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ द लोक दल and its allies. Lok Dal and its partner won 76 out of 90 seats and the state assembly. The Lok alone won the 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. The Congress would win only 5 seats once the election results were announced. The sitting chief minister resigned the newly elected member of the legislative assembly of a Lok Dal chose Devilal as their leader. The governor invited Devilal to be the new chief minister 3 days after the election results were declared. He became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of a small farmer, agricultural laborer and the small businessman. His party ruled the state for 4 years and the next election were held in 1991, but this time the party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी उनकी एक्सटेंशन जो भी गवर्नमेंट थी जो भी एग्जिस्ट कर रही थी उस वक्त, बेसिकली उनके वजह से क्या हो रहा था, लोग उनसे खुश नहीं थे। तो एक नई पार्टी आई, उन्होंने नए तरह के प्रॉमिस किए कि हाँ हम ये सारे काम करवाएंगे। और जब वो जीती तो क्या हुआ कि वो इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने थोड़ी हेल्प की थोड़ी नहीं की, या जैसा भी उनका डिसीजन रहा हो। लेकिन वापस से जब इलेक्शन हुए कुछ साल के बाद तो वो पार्टी फिर दोबारा नहीं जीती। क्यों? ज़रूर उन्होंने जो प्रॉमिस किया है फुलफिल ना कर पाए हो पूरी तरह से, लोग फिर भी क्या हो, अनहैप्पी हो उस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं ये कुछ रीजंस होते हैं। तो इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है, क्यों है, यहाँ पे देखना है। सो सी द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ हियर कि जब भी इलेक्शन हम लेते हैं, कोई एक पार्टी को अगर हम जीतवा देते हैं वो आ जाती है, अगर उसने 4-5 साल काम ढंग से नहीं किया तो क्या है, आगे भी वो नहीं करेंगे और किसी भी तरह से क्या होगा, हमारा बेसिकली हम जो विकास करवाना चाहते हैं वो विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए इलेक्शंस का होना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Why do we need election? Election takes place regularly in any democracy. We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose a people's representative. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. But why do we need election? Let us try to imagine a democracy without election. A rule of people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decisions. But as we have already seen in the chapter 2, this is not possible in any large community, nor it is possible for everyone to have the time and knowledge of take decision in all matters. Therefore, in most democratic people rule through their representative. Is there a democratic way of selecting representative without election? Let us think of the place where representative are selected on the basis of the age and experiences. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें क्यों ज़रूरत है इलेक्शंस की। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमें इलेक्शंस जो है रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ बताया है, कुछ चॉइसेस दी हैं, हम डायरेक्टली पहले वो पढ़ेंगे उसके बाद हम इस पर
फिर से जो है हम डिस्कशन करेंगे। In any election, the voter makes many choices. They can choose who will make the law for them. They can choose who will form the government and take a major decision. They can choose the party whose policies will guide the government and law making. बेसिकली देखिए, इलेक्शंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सामने वाली पार्टी अभी जीती है और बाद में भी वो जीतना चाहती है तो उसके लिए क्या है, उसको कहीं ना कहीं अच्छा काम करना होगा, लोगों के दिल में जगह बनानी होगी। उनके लिए जो भी डेवलपमेंट के काम जो चाहती है जनता करवाई जाए वो उनके द्वारा किया जाना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो फिर ज़रूरी है कि इलेक्शन जब दोबारा हो तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और फिर उसके हिसाब से क्या करें, अपनी वोटिंग्स दें। What make an election democratic? अब इलेक्शन को क्या ऐसी चीज़ है जो डेमोक्रेटिक बनाती है? Elections can be held in many ways. All democratic countries hold the election, but most non-democratic countries also hold some kind of elections. How do we distinguish a democratic election from any other election? We have discussed these questions briefly in chapter 2. We discussed many examples of countries where elections are held, but they can't really be called a democratic elections. Let us recall what we learned there and start with a simple list of the minimum condition of a democratic election. अब कुछ conditions बताई गई हैं, देखिए। First, everyone should be able to choose. This means that everyone should have a one vote and everyone should have a equal value. अब देखिए, मतलब लोगों के पास क्या है, equal value और equal vote का हक होना चाहिए जो उतनी ही वैल्यू करता हो। Second, there should be something to choose from a party and the candidate should be free to contest election, should offer some real choices to the voters. अब जो भी पर्सन आ रहा है पार्टी का, वो उन्हें रियल चॉइसेस जो चाहिए वो उन्हें देता हो, उसके बेस पे करें। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल्स. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी ईयर्स. और ये जो चॉइसेस है लोगों के पास एक इंटरवल के बाद हमेशा मिलते रहना चाहिए, ताकि क्या है, कुछ सालों में जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा रेगुलर ये फ्रिक्वेंट नहीं होता है, एक टाइम पीरियड के लिए ये जो है इंटरवल रहता है, उसके बाद आपको ये हक मिलना चाहिए ताकि क्या है, सही तरह का डिसीजन और चॉइस जो है वो ली जा सके। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. और फोर्थ ये है कि कैंडिडेट उन्हीं को प्रेफर करें जो जिन्हें वो चाहते हैं कि वो इलेक्ट हों अच्छे से। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड अ फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज़ एज दे रियली विश. और इलेक्शन जो है ये रियली फेयर मैनर में होना चाहिए, जो जिन्हें वो चूज़ करना चाहते हैं वही वो जीते और आगे आएँ। These might look like a very simple and easy condition, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter, we will apply this condition to the elections held in our own country to see if we can call this democratic election. और देखिए आपकी कंट्री में किस तरह का इलेक्शन होता है और उसे ऑब्जर्व करिए, क्या वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, क्या आप उसे कह सकते हैं। Now the next one is it good to have a political competition? अब बताइए क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना गुड है? अब मैं इसके कुछ जो है पॉइंट्स पढ़ने वाली हूँ, देन आई एम गोना एक्सप्लेन यू दैट थिंग इन अ डिस्कशन राउंड, सो जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली. See, elections are thus all about the political competition, and this competition takes various forms. Thus, most obvious form is the competition among a political party at the constituency level. It takes the form of competition among the several conditions. If there is no competition, election will become a pointless. But is it good to have a political competition? Clearly, an electoral competition has many demerits. It creates a sense of disunity and the factionalism in every locality. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political party and leader often level allegations against one another. Parties and condition often use a dirty trick to win elections. Some people say that this pressure to win an electoral fight does not allow a sensible long-term policies to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena, and they do not like the idea of being dragged into an unhealthy competition. अब देखिए जो कंपटीशन है वो सही तरह से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको कि कंपटीशन ना हो तो ये गलत है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कभी कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाएगा कि सामने वाली पार्टी जो आ रही है तो वो क्या अच्छा कर रही है और उसकी पार्टी ने क्या ऐसा काम किया जो अच्छा नहीं है। तो एक फेयर और हेल्दी कंपटीशन होना ज़रूरी है, यानी एक अनहेल्दी वे में किसी चीज़ को ड्रैग करके ज़बरदस्ती करवाई जाए वो चीज़ें गलत हैं। दो अलग अलग पार्टीज़ जो हैं, पहले अगर कोई जीत रही है या वापस से जीत रही है या दोनों पार्टी नहीं है वो
सत्ता में आना चाहती है तो वो किस तरह के काम कर रही है, किस तरह के प्रॉमिसेस कर रही है कि वो इस चीज़ों को चेंज कर सकती है, जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उन पे ध्यान देना हमारा ज़रूरी है। तो ये क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन होगा। वाई? क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए अभी हमने किसी पार्टी को हमने जिताया है, जो कि अभी हमारी करंट क्या है, गवर्नमेंट है, और वो कुछ काम जैसे कि उसने कुछ प्रॉमिसेस किए थे वो उसे फुलफ़िल नहीं कर रही है, या उसने इलेक्शन जीतते ही वो सारे प्रॉमिसेस को भूल गई, उसे नहीं करना है आगे उस पर काम, तो क्या होगा, बेसिकली जनता ने जिस चीज़ के लिए उन्हें इलेक्ट किया है, जो उनकी प्रॉब्लम है, ताकि उनको समझे और उस चीज़ को ठीक करे, वो क्या करेंगी, वो नहीं ठीक करेंगी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है कि वो मतलब उसे प्रॉपरली रियलाइज़ होना चाहिए उस गवर्नमेंट की, कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसे क्या करना है। तो हम कई तरह के धरना और प्रोटेस्ट करते हैं ताकि बेसिकली क्या है, हमारी चीज़ों की मांग हमारी पूरी की जा सके। लेकिन अगर ऐसा होता है जनरली कि अगर कोई दूसरी पार्टी अगली बार जीतती, क्योंकि हम इस पार्टी से क्या है, खुश नहीं है, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कई सारे रीज़न से, तो हम अगली बार क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम दूसरी पार्टी जब आएगी तो उससे हम बोलेंगे, दूसरी पार्टी हमसे कुछ प्रॉमिस करेगी और हम उनसे कुछ कई बातें कहेंगे, एंड देन अगर वो इलेक्ट हो जाती है, हम उनसे चांस देते हैं और फिर वो सारा काम अच्छा करती है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं पिछली पार्टी को रियलाइज़ हो जाता है कि क्या क्या गलतियाँ उसने की है और इस वजह से वो क्या हो रही है, नहीं जीत पा रही है। तो ये जो है एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है और इस वजह से चलते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कई तरह के इम्प्रूवमेंट लेके आती है। नाउ व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हमारे सिस्टम का इलेक्शंस का कैसा, देखिए यहाँ पे कुछ कार्टून्स बताए गए हैं, मतलब कि मेरे पास वोट है, उनके पास कुछ योजनाएं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, वो बताए हैं और आए हैं, उसके बाद क्या है, सारे प्रोमिस लेके जैसे वो नेता बने वो वापस चल गए, वोटर बेचारा वैसे ही बैठा है, यानी अपनी प्रोमिस को वो पूरा भी नहीं कर पाया जो वो चाहता था उधर उनसे। नाउ वी सी व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हमारे सिस्टम में किस तरह का इलेक्शंस होता है वो चलिए देखें क्या है। सो लेट्स वी आर गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर पॉइंट, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। अब क्या है ये चीज़ें, यू रीड अबाउट द पीपल ऑफ द हरियाणा इलेक्टिंग विच इज़ 90 MLAs, you may have wondered how they did that, and did every person in Haryana vote of all the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into a different area for purpose of election, and this area are called electoral constituency. The voters who live in an area elect one representative for a Lok Sabha election, and the country is divided into 543 constituency. The representative elected from each constituency is called a member of a parliament or an MP. One of the features of the democratic election is that every vote should have an equal value, and that is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. Similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituency in this case, and the elected representative is called a member of a legislative assembly or an MLA. Each parliamentary constituency has within a several assembly constituency. The same principle applies for panchayat and the municipal corporate elections. Each village or a town is divided into a several wards that are like constituency. Each ward elects one member of the village of the urban local body, and sometimes this constituency are counted as a seat for each constituency represented on one seat in the assembly. When we say that the Lok Dal won a 60 seat in Haryana, it means that the candidates of Lok Dal won in 16 assembly constituency in the state, and thus Lok Dal had 60 MLA in the state of assembly. अब देखिए बताया गया है बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें हर कंस्टिट्यूएंसी से क्या होता है, एक मेंबर आता है जो कि लोकसभा में जाता है, जिसकी और हमारी अगर हम कंट्री की बात करें तो उसमें कितनी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं कंस्टिट्यूएंसी से, वो क्या बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो बेसिकली क्या है, हर एक इक्वल वैल्यू है उसकी हर पर्सन की वोट को, और उस वोट का सही इस्तेमाल होना ज़रूरी है, हमारा सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमें बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाता है, और इस तरह से हमारा जो है इलेक्शंस चलता है।
नाउ वी सी द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। अब जैसे कि आप जानते हैं कई तरह की कास्ट कैटेगरी होती है, जिसके अंदर वुमेन कैटेगरी भी है और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर क्या है बेसिकली कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब कुछ जो सीट्स हैं वो उनके नाम से क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं कि वो उन्हीं के लिए। तो चलिए देखते हैं हम उसमें आगे। Our Constitution entitles every citizen to elect her his representative and to be elected as a representative. The Constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. They may not have the required resources, education and the contacts to contest and win the election against the others. Those who are influential and the resourceful may prevent them from a winning election. If that happens, our parliament and the assembly would be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. So the makers our constitution thought of a special system of reserved constituency for the weaker section. Some constituencies are reserved for the people who belong to the scheduled caste and the scheduled tribe. In a SC reserve constituency, only someone who belongs to a scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribe can contest an election from the constituency reserved for ST. Currently, in a Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes. This number is in proportion to their share in the total population. Thus, the reserved seat for SC and ST do not take away the legitimate and share of the any other social group. The system of a reservation was extended later to the other weaker section at the district and the local level. In many states, seats in a rural, which is a panchayat, and the urban local body are now reserved for the other backward class, which is OBC. As well, however, the proportion of the seat reserved varied from the state and state. Similarly, the 1/3 of the seats are reserved in the rural and the urban local bodies for a woman candidate. अब देखिए यहाँ पर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो चीज़ बताई गई है वो यही कि सालों से कई सारी चीज़ें होती चली आ रही थी। कुछ जो कैटेगरीज थी, कुछ जो लोग थे उन्हें बहुत ही अनदेखा किया जा रहा था और उन्हें उतना चांस नहीं मिलता था बाकी चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जा रही थी तो उस वक्त जो मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इनके लिए एक स्पेशल राइट या हम कह सकते हैं एक स्पेशल रिजर्वेशन होना ज़रूरी है, तभी इन्हें क्या होगा, चांस मिलेगा। एल्स दे आर गोइंग टू बी यू कैन से फॉरगॉटन और समथिंग। तो ये चीज़ें ना हो इसलिए उन्होंने क्या की, कहीं ना कहीं रिजर्व सीट बनाई कि इनके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ताकि उन्हें इक्वली चांस मिले, रिजर्वेशन मिले, ताकि वो लोग आ सकें। इसके साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लास विच इज़ OBC, वहाँ पे भी कई लोगों को चांस मिला, उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशंस रखे गए। फिर वुमेन कैटेगरी के लिए भी रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, जब सब कैटेगरी की कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस है तो इतनी चीज़ें पक्की होती कि इनमें से ही कुछ कैंडिडेट्स को हक मिलेगा ताकि वो आगे आके बढ़ सकें। और जब ये चीज़ मिलेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। तो ये चीज़ें इस तरह से बनाई गई है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब हम देखेंगे वोटर्स लिस्ट। तो चलिए देखते हैं आगे। अब वोटर्स लिस्ट के बारे में क्या बताया है वो हम देखेंगे। Once the constituency are decided to, the next step is to decide who can not vote, and the decision cannot to left anyone till the last day. अब बेसिकली देखिए वोटर्स लिस्ट में कुछ नियम कानून है जिसके अंतर्गत ही हमें वोटिंग करने का हक मिलता है। तो यहाँ पे उन्हीं कानून के बारे में ही बताया गया है और किस तरह के राइट उनके पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इन जनरली अगर मैं आपको कहूँ तो आप सभी को पता है कि हमें वोट करने के लिए कम से कम हमारी इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए उस कंट्री का, ठीक है। हमारी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, हम एक एडल्ट पर्सन की तरह रहें, तब जाके हम क्या होगा, हम एनरोल कर सकेंगे खुद को एक वोटिंग लिस्ट में, हम अप्लाई कर सकेंगे। एंड देन अप्लाई करने के बाद जब हमें वो हमारा वोटिंग कार्ड मिलेगा तो हमें हक होगा एक बात का, किस बात का, कि हम आने वाले किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे कि देखिए डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज एंड सम आर रिच सम आर पुअर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर है तो उसे वोट करने का हक है, कोई गरीब है तो उसे वोट करने का हक नहीं। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इक्वली सभी को यह हक मिलता है। जो भी हमारी कंट्री का सिटीज़न है और 18 ईयर्स कंप्लीट करता है, ये हक सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये चीज़ जो है वो क्या है, काफ़ी अच्छी है। अब देखिए यहाँ पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताया, जनरल कैटेगरी, रिजर्व ST, वहाँ पे कितनी क्या सीटें हैं वो चीज़ें दिखाई गई हैं।
नाउ वी आर गोइंग टू सी नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब बेसिकली नॉमिनेशन किस तरह से होता है कैंडिडेट का, वो यहाँ के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। We noted above that in a democratic election, people should have a real choice. This happens only when there are almost no restriction on anyone to contest an election. This is what our system provides. Anyone who can be voter can also come to be a candidate in election. The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, and while it is only 18 years for being a voter. There are some other restriction on the criminals, etc. But political party nominate their candidate who get the party symbol and support. Party's nomination is often called the party ticket. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Recently, a new system of a declaration has been introduced on a direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving a full details of a serious criminal cases pending against the candidate and the detail of the asset and the liabilities of the candidate, his or her family, education qualification of the candidate, and this information has to be made public, and this provide an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidate. अब देखिए नॉमिनेशन लेना फॉर्म का इतना इजी नहीं है, बेसिकली उसके लिए आपको कई तरह की जो है चीज़ें क्लियर करनी होगी, यानी कि क्या है, कम से कम आपका एज जो है लगभग जैसे कि आप एक वोट देने की एज में आते हैं वैसे आप अपनी पार्टी का टिकट भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नियम का डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि वोटिंग करने के लिए आप 18 ईयर्स के बाद अडल्ट एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, आप वोट दे सकते हैं, लेकिन कैंडिडेचर ही पाने के लिए बेसिकली आपको क्या है अपनी एज का 25 ईयर्स कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ इलेक्शन जो है पार्टी का नॉमिनेशन और बाकी सारी चीज़ों को जो ले जाती है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, पार्टी टिकट कहते हैं। जो भी इलेक्शन में खड़ा होना चाह रहा है उसे एक सिक्योरिटी अमाउंट जो है उतना डिपॉजिट करना होता है। इसके बाद भी कई तरह के नए नए डिक्लेरेशन होते हैं जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाते हैं, वो उन्हें फुलफ़िल करनी होती है। इसके साथ साथ उन क्या सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी उन्होंने की है, किस तरह के केसेस चल रहे हैं, क्या लाइबिलिटीज़ उनकी और उनकी फैमिली ने ली है, या किस तरह का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनका, इस सारी बात पब्लिकली हर एक को पता होनी ज़रूरी है, ताकि वो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो है अपना डिसीजन ले सके। इस तरह का एक फॉर्म आता है जो फॉर्म उन्हें फिल करना होता है। अब हम देखेंगे इलेक्शन कैंपेन। अब बेसिकली इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है वो चीज़ें हमें देखनी है और जाननी है। The main purpose of election is to give a people a chance to choose a representative and the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative and which party will make a better government or what is a good policy. This is what happens during an election campaign in our country. Such campaign take place for a 2-week period between the announcement of the final list of the candidate and the date of the polling. During this period, the candidate contact their voters for the political leader, address election meetings, and the political party mobilize their supporters. This is also the period when the newspaper and television news are full of the electoral. अब बेसिकली देखिए इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, मैं इन जनरल आपको बेसिकली बताने वाली हूँ, उसके बाद जो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है हम उसे थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए इलेक्शन कैंपेन में होता क्या है, जो भी पार्टीज़ को हम बेसिकली जो टिकट मिली होती है प्रमोशन की, वो आते हैं, वो किस तरह का काम करना चाहते हैं, क्या क्या प्रोमिसेस करना चाहते हैं लोगों से, क्या चेंजेस वो उनके लिए लाना चाहते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, वो आगे बढ़ के उसके बारे में बताते हैं। लोग उससे इम्प्रेस होते हैं, अगर वो चाहते हैं जो डिसीजन ले रहा है उनके लिए अच्छा है या बुरा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या है बेसिकली वो जज करते हैं, और वोटिंग के दिन उसी बेस पे वो क्या करते हैं, उन्हें वोट देते हैं। तो ये इलेक्शन कैंपेन का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये बहुत ही कम खर्च में नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करना होता है, कई तरह के कैंपेन्स जो है रखने होते हैं, लोगों के घर जा जा के अपनी चीज़ों को बताना होता है, अपनी पार्टी के बारे में क्या वो सोच रही है, क्या कर रही है। तो इस तरह से बहुत ही कैंपेन होते हैं, इसमें कई सारा पब्लिक का अटेंशन होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा इशू भी है अगर वो पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं या और दूसरी चीज़ें। अब देखिए द कांग्रेस पार्टी जो है लेड बाय इंदिरा गांधी गिव अ स्लोगन ऑफ अ गरीबी हटाओ। अब जैसे कोई भी पार्टी आती है, ठीक है, तो वो अपना कुछ ना स्लोगन देती है कि हाँ ये करेगी या वो करेगी। जैसे अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी की पार्टी आई थी तो उन्होंने दी थी कि गरीबी हटाओ, यानी रिमूव पॉवर्टी। तो इस तरह से लोकसभा इलेक्शन में 97 में क्या हुआ, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो जो है इस चीज़ को ट्रीट करेंगे और कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे ताकि अपनी कंट्री से क्या है गरीबी धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाए।
अब सेव डेमोक्रेसी, अब लोकतंत्र की रक्षा करना। अब इस स्लोगन से क्या है, बेसिकली जनता पार्टी ने दिया था, जिसके अंदर लीडरशिप थी किनकी, जयप्रकाश नारायण की, कि वो जो है जिस तरह की प्रॉमिस रख रहे हैं उसे वो पूरा फुलफ़िल करेंगे एक एज अ एमरजेंस, एंड ये रीस्टोर करेंगे सारी सिविल लिबर्टीज़ को। अब देखते हैं हम आगे। द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ द लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। Protect the self-respect of the Telugus was the slogan used by the N.T. Rama Rao and the leader of the Telugu Desam Party इन द आंध्र प्रदेश, जिसे इन्होंने तेलुगु समाज के लिए अपना एक स्लोगन दिया। तो इस तरह से हर पार्टी क्या करती है, इलेक्शन कैंपेन में अपना कुछ ना कुछ स्लोगन रखती है जिस चीज़ के लिए वो खड़े हुए हैं। Now we here see the campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete according to our election law, and no party or a candidate can bribe or threaten voters, appeal to them in the name of the caste or religion, use the government resources for election campaign, and spend more than rupees 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election और रुपीज़ 10 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन। अब देखिए जो ये ब्राइब के थ्रेटन होते हैं वोटर्स तक, मतलब किस तरह से उनको ब्राइब किया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि मतलब क्या उन्हें दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शंस कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर ऐसी चीज़ें करते हुए पकड़े गए हैं, इस तरह का ब्राइब कर रहे हैं वो वोटर्स को, तो क्या होगा उसके बाद जो है कोर्ट उनके जो इलेक्टेड हुए हैं उनके बेसिकली उन्हें रिमूव कर देगा। All the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for the election campaign. According to this, no party or a candidate can use any place of worship for election propaganda, use government vehicle, aircraft and the officials for elections, and once elections are announced, ministers shall not lay a foundation stones of any project, take any big policy decision or make any promises of providing a public facility. Now we see the polling and counting of votes. अब how we are going to vote or poll and how it is counting, we are going to see that thing here. The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. The day is usually called the election day. Every person whose name is on the voters list can go a nearby polling booth situated usually a local school or a government office. Once a voter goes inside the booth, the election official identify her, put her mark her finger and allow her to cast her vote. देखिए पोलिंग और काउंटिंग के दिन बेसिकली क्या होता है, जैसे हम 18 ईयर्स के कंप्लीट होते हैं, ठीक है, हम अपना एनरोल करते हैं खुद को, उसके बाद हमारा वोटिंग कार्ड बन के आता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जिस दिन भी इलेक्शंस होता है, जो पोलिंग का दिन होता है, उस दिन जब हम जाते हैं तो वो इलेक्शन ऑफिसर जो रहता है वो करता क्या है, वो हमें पहचानता है, ठीक है, लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं, उसके बाद हमें वो मार्क करता है, फिर हमें अंदर भेजता है जहाँ पर पोलिंग मशीन रखी होती है या पोलिंग कार्ड्स रखे होते हैं। अकॉर्डिंगली हम जिसे जिताना चाहते हैं हम उसे क्या करते हैं, पोल करते हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें जो है बेसिकली होती है। अब देखते हैं आगे। Earlier the voter used to indicate who they wanted to vote by putting a stamp on the ballot paper। देखिए अब पोलिंग में भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। पहले जो पोलिंग होती थी उसमें क्या होता था कि एक पेपर रखा होता था जिसे हम बैलेट पेपर कहते थे और उस पर लोग स्टैम्प करते थे जिनकी भी पार्टी को वो जिताना चाहते थे। लेकिन अभी इन चीज़ों में कई सारी कंट्रीज़ में ये आज भी हो रहा है और कई कंट्रीज़ में चेंज हो गया है और उसकी जगह क्या आ गई है, पोलिंग मशीन्स आ गई है। इस ईवीएम मशीन की हेल्प से क्या होता है, जो भी उन्हें चाहिए उसकी ही आगे जो सिंबल बना है उस पर वो मार्क कर देते हैं और अकॉर्डिंगली क्या होता है वो वोट उनको मिल जाता है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं और इसमें भी कई तरह की जो है चोरियाँ की जा रही है जो कि सही नहीं है वोटिंग की, लेकिन स्टिल दे आर गोइंग ऑन। सो आई होप ये चीज़ें सुधरेंगी और आगे और भी अच्छी होंगी। लेट्स सी अहेड आवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब क्या इंडिया में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है वो के देखेंगे हम आगे। We get to read a lot about unfair practice in election. Newspaper and television reports often refer to such allegation. Most of these reports are about the following: inclusion of the false names and exclusion of the genuine name in the voters list, misuse of the government facility and officials by the ruling party, excessive use of money by rich candidates and big parties, and intimidation of voters and rigging on the polling day.
Many of these reports are correct. We feel unhappy when we see such report, but fortunately they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of election. This become clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to a power not because it has a popular support but through though the electoral malpractice? This is a vital question. Let us carefully examine various aspects of this question. अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने कई सारी चीज़ें देखी हैं कि कई लोग फॉल्स नेम का यूज़ कर रहे थे जेन्युइन की जगह पे वोटर्स लिस्ट में, और फिर वो लोग एक्स्ट्रा के वोट्स जाके डाल देते हैं, मिसयूज़ करते हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी का, जैसे रूलिंग पार्टी की जो भी मनी है या फिर जो भी उन्हें दी जा रही है अलाउंसेस या बाकी की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का मिसयूज़ होता है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ना हो, और कहीं ना कहीं ये इतनी तादाद में नहीं हो रहा है कि हम इसे रोक ना सके, तो ये हमारे लिए अच्छा है। इसके साथ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है, अब देखिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करता है। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर द इलेक्शन आर फेयर और नॉट इज़ टू लुक एट द हु कंडक्ट द इलेक्शन। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट और कैन द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस द pressurize them? Do they have enough power to be able to conduct a free and fair election? Do they actually use this power? तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे ही क्या होता है, बेसिकली इन सारी चीज़ों को जज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं है या फिर प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा है उन्हें रूलिंग पार्टी के द्वारा, ताकि वो क्या है एक फ्री और फेयर इलेक्शन कर सकें। The answer to all this question is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission, which it enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. The chief election commission is the appointed by the president of India. अब जो chief election commissioner होता है, ये basically जो president होता है इंडिया का, उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये आंसरेबल होता है प्रेसिडेंट को, और इवन द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज। तो ये जो रूलिंग पार्टी होती है, तो गवर्नमेंट ने क्या की है नहीं की, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना इनका ज़रूरी है। अगर कोई ऐसी चीज़ करें जो कि सही नहीं है तो वो उसे मना भी करेगी, डिनाई भी करेगी। Election Commission takes decision on every aspect of the conduct and control of election, from the announcement of the election to the declaration of the result. It implements the code of conduct and punishes the candidate or a party that violated it. During the election period, the Election Commission can order to the government to follow some guidelines and prevent the misuse of the government power, यानी government power का misuse ना हो, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है उन्हें। When on election duty, the government officer work under the control of the Election Commission and not to the गवर्नमेंट। और जब इलेक्शन की ड्यूटी लग रही है तो लोगों को जो काम करना है वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से करना है, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो बताई जाएगी। इन द लास्ट 25 ईयर्स तो जो है इलेक्शन कमीशन ने एक्सरसाइज बिगन किया और कहीं ना कहीं इसे एक्सपांड भी कर रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है ना इस समय पे। और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी तरह हम कह सकते हैं अच्छी तरह से चल रहा है एंटायर कंस्टिट्यूंसी को लेके। अब हम देखेंगे पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या है। Another way to check the quality of the election process is to see whether the people are participating in it with enthusiasm or not. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. Now read this chart and draw some conclusion about the participation in India. अब देखिए बेसिकली कितने पॉपुलरली सब लोग पार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में बताया गया है इंडिया और यूके का ग्राफ रख के। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर्स टर्नआउट फिगर, मतलब वोटिंग कितनी ज़्यादा हुई है इसी के फिगर पे ये चीज़ों को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है इन द इंडिया द पुअर इलिटरेट एंड द अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन द लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट इन द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल इन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका पुअर पीपल, अफ्रीकन पीपल एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल। अब देखिए इंडिया में बेसिकली इस चीज़ का फ़र्क देखने को मिलता है कि जो जितने ज़्यादा गरीब है उनके वोट ज़्यादा मिलेंगे और जो रिच हैं प्रिविलेज लोग हैं वो उतने ही कम वोट पे दिखते हैं। लेकिन अगर हम यूनाइटेड अमेरिका की स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है। वहाँ पे जो पीपल गरीब हैं या जो ऐसे लोग हैं वो उनके वोट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच। तो रिच और बिजनेसमैन जो है इनके ज़्यादा वोट वहाँ पे मिलते हैं। तो एक ये जो है बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। थर्ड जो है वो क्या है, कॉमन पीपल इन इंडिया आर अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द इलेक्शन एंड दे फील दैट थ्रू द इलेक्शन दे कैन ब्रिंग अ प्रेशर
on a political party to adopt a policy and program favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. अब कॉमन पीपल जो है इंडिया को कहीं ना कहीं सारी इंपॉर्टेंस से अटैच है कि कहीं ना कहीं उसका जो इलेक्शन है, जो वोट है, ये सामने वाली पार्टी पे प्रेशर क्रिएट करेगा कि वो अच्छा से अच्छा जो है वो काम कर सके, तो ये फेवरेबल होगा। तो ये इस तरह से भी ये इस कंट्री, हमारी कंट्री में जो है ये मैटर करता है। अब जो हमारा चौथा जो है क्या है देखते हैं वो। The interest of a voter election related to the activity has been increased over the year. During the 2004 election, more than one-third voter took part in the campaign-related activity. More than half of the people identify themselves as being close to one or another political party. 1 out of every voter is a member of a political party. अब देखिए, जो भी मेंबर्स हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टी के, उनका अपना इंटरेस्ट होता है किसे वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और किसे बड़ा कम करना चाह रहे हैं। सभी पीपल जो है आइडेंटिफाइड करते हैं और एक दूसरी की पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं, अकॉर्डिंगली क्या है वो वोट भी करते हैं। नाउ वी सी द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब जो भी रिज़ल्ट आता है इलेक्शन का या जो भी आउटकम्स आ रहे हैं उससे इसकी एक्सेप्टेंस के बारे में देखेंगे हमें यहाँ। वन फाइनल टेस्ट of the free and the fairness of the election has in the outcome itself. If the election are not free and fair, the outcome always favors to the powerful. In such situation, the ruling party do not lose election. Usually, the losing party does not accept the outcome of the rigid election. अब देखिए क्या होता है, अगर पार्टी का जो पार्टी बेसिकली लड़ी जा रही है, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर ये फेयर फॉर डिसीजन नहीं होगा तो क्या होगा, वही पर्सन जीतेगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और ये जो है कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। तो आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो आउटकम आ रहे हैं इंडिया के इलेक्शंस के वो क्या आ रहे हैं वो हम देखेंगे यहाँ आगे। द रूलिंग पार्टी routinely lose election in India both at the national and state level. In fact, every 2 out of the 3 election held in the last 15 years, the ruling party lost. अब कई बार देखिए क्या हो रहा है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अलग है। हम इलेक्शंस इंडिया में देखें तो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है कि हर 2 पार्टी 3 इलेक्शंस में से क्या हो रहा है, हर लास्ट 15 ईयर्स में जो है वो क्या हो रही है, लॉस कर रही है यानी हार रही है। इन द US, the increment of sitting elected representative rarely loses the election. In India, about the half of the sitting MPs and MLA lose the election. यहाँ पे तो आधे से ज़्यादा क्या होते हैं, हारते हैं। Candidates who are known to have spent a lot of money or buying a votes, those with a known criminal connections often lose the election. जो लोग क्रिमिनल कनेक्शंस रख रहे हैं या पैसे बांट के ब्राइब कर रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, तो ये भी क्या करते हैं, लूज़ करते हैं इलेक्शंस। बैनिंग अ वेरी फ्यू डिस्प्यूट इलेक्शन एंड इलेक्टोरल आउटकम यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय अ डिफीटेड पार्टी। नाउ वी सी द चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किस तरह से हो रहे हैं। All this leads to a simple conclusion. Election in India are basically free and fair. The party that wins an elections or form a government does not because people have chosen it over its rival. This may not be true for even a constituency. A few candidate may win purely on the basis of the money, power and unfair means, but the overall verdict of the general election, there are very few exceptions to this rule in the last 50 years in our country. This is what makes the India elections democratic, yet the picture looks different. If we ask deeper question, are people a preference based on the real knowledge? Are the voters getting a real choices? Is election really a level playing field for everyone? अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये रेज हो रहे हैं कि क्या ये सच में फेयर वन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड ब्रिंग अप मेनी लिमिटेशंस एंड चैलेंज ऑफ इंडिया इलेक्शन इन आर अटेंशन। दीज आर मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं देखते हैं। Candidate and party with a lot of money may not be sure if the victory, but they do enjoy a big and unfair advantage of over small parties and independent. देखिए जो पार्टी के पास बहुत पैसा होता है वो जानती है कि वो विक्ट्री होगी या नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस सारी बेसिस पे क्या है वो इंडिपेंडेंटली अपना एडवांटेज लेती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद द क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स टू ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड सिक्योर अ टिकट फ्रॉम द मेजर पार्टी। अब कई कंट्री में ऐसा भी होता है कि क्या है कुछ ना कुछ क्रिमिनल कनेक्शन होने की वजह से जो है बाकी को भी पुश कर देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी टिकट जो है सिक्योर कर लेते हैं। Some families tend to dominate a political party. Ticket are distributed relatively for this family. अब कुछ पार्टीज़ ऐसी होती है कि वो अपने ही जो घर के लोग हैं जो बेसिकली उनके रिलेटिव हैं उनमें ही जो है पार्टी टिकट क्या हो रही है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। Very often the elections offer a little choices of ordinary citizens for both the major parties.
are quite similar to each other both in the policies and practice. Similar parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to the bigger parties. This challenge exists not just in the democracies. These deeper issues are the matter of a concern for those who believe in the democracy. अब देखिए ये सारे चैलेंजेस बताए गए हैं, इसके साथ एक इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब आज में ऐसा ही है कि जैसे जब इलेक्शंस का टाइम आता है तो जनता की वैल्यू बढ़ जाती है, सारे नेता जो है उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं बेसिकली कि हमें ही वोट करें, हमें ही वोट करें। और जैसे ही वोटिंग ख़त्म होता है, लोग नेताओं का काम निकल जाता है, उसके बाद उस जनता की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो यही चीज़ इस इमेज में दिखाई जा रही है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज़ आस्क मी। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग अबाउट दिस चैप्टर, द ओवरऑल व्यू इज़ कि इलेक्शंस क्यों होना चाहिए, इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है, हमारी वोट की कितनी वैल्यू है, हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं किस तरह का फेयर डिसीजन है, अनफेयर डिसीजन है, क्या करना सही है क्या गलत, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आई होप मैंने सारी चीज़ें प्रॉपरली कन्वे की है आपको। And I'm again saying that thing, if you have any doubt, please ask me anytime. Thank you for the day.